whenever we want to start with accounting, the first step that we take is understanding what is an ऐसी equation जो resources को बराबर कर देती है sources of finance से, तो वो हमारी क्या बन जाती है internal. So this is total equity. Sources of finance means total equity. This can be of two types. One, internal. Borrowed rupees 10,000 from X. अब यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल्स अफेक्ट हो रहे हैं? Assets और liability. यहाँ क्या हो गया? Zero. यहाँ कितना था? Zero. So your assets is becoming equal to your total equity. और supplier of goods इसका मतलब कैश पे नहीं खरीदे थे, खरीदे थे क्रेडिट पे. उधार पे खरीदे तो हमारा कौन सा अफेक्ट होगा? क्रेडिटर्स. कैश रिसीव करना था तो वो क्या था हमारा? डेटर. तो डेटर से मुझे कितने एक्चुअली मिलने चाहिए थे? 20,000 रुपए. लायबिलिटीज, मेरी लायबिलिटी कितने से कम हुई होगी? 24,500 से. डिस्काउंट भी तो मिला है 500. Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study accounting equation, which is the first step of accounts. Whenever we want to start with accounting, the first step that we take is understanding what is an accounting equation in the practical part. इससे पहले we have accounting concepts, accounting principles, accounting standards. We have basic terms in accounting where we understand this. So in practical part, this is the first step. ये समझ आता है, उसके बाद हम journal entries पे जाते हैं, फिर ledger पे जाते हैं, फिर trial balance, trading, P&L, balance sheet, and the entire process. So first and foremost thing is understanding कि accounting equation क्या है, ठीक है? First of all, it is an equation that equals between resources and sources of finance. ऐसी इक्वेशन जो रिसोर्सेज को बराबर कर देती है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, तो वो हमारी क्या बन जाती है? अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? Resources, whenever we have spoken about what assets are, I have made a short reel regarding what is the definition of assets, what are the various types of assets. So whenever we have assets का मतलब क्या होता है? ऐसे resources that the business owns and that will provide benefit through the course of the business. So these are resources that are going to provide us the benefit. So resources are what? My total assets. Now this, since it's an equation, भाई नाम में है equation, so according to maths, equation का मतलब बीच में क्या होना चाहिए? Equal to. So this is equal to sources of finance. तो जो हमारे resources है वो किसके बराबर होने चाहिए? पैसा जहां से आया है उसके sources से, right? Now these can be of two types. Internal, so this is total equity. Sources of finance means total equity. This can be of two types. One, internal equity, and the other one is external equity. Internal equity मतलब जो हमने डाली है in the business, or the finance that we have put into the business, and external equity वो जो हमने बाहर से ली है अपने business के लिए, ठीक है? Now this is the equation where we have changed resources to total assets and sources of finance to total equity. तो हमारे total equity में क्या है? Internal equity and external equity, जिसमें internal equity को क्या बोला जाता है? Capital, जो हमने invest की है in our business, and external equity को क्या बोला जाता है? Liabilities, जो कि हमने बाहर वालों से पैसा लिया है अपने business में डालने के लिए और काम करने के लिए. So the accounting equation becomes like assets is equal to liabilities plus capital. So your resources becomes equal to the sources of finance. So this is the basic meaning of accounting equation. So we have all the transactions of the business. They are or they can be put in sense of an equation. Now how? We will have a look at them. Okay, one by one with various different transactions that will be happening and how and under what name we can put it in the accounting equation. तो जब भी हमारे पास कोई भी एक ट्रांजैक्शन आता है और उसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे? फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, ठीक है? द नेक्स्ट स्टेप इज आर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड फाइनली टू पुट इट इनटू द इक्वेशन. सो वी हैव थ्री levels or three steps for writing accounting equation. One, to understand what are the variables involved. Number two, to know that if they're increasing or decreasing, and finally putting it into the equation.
So let's have a look at different transactions one by one. Okay. So first of all, we have these basic transactions that are there. Started business with ₹1 lakh. तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरिएबल्स अफेक्टेड. अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला वेरिएबल तो 100% कैपिटल होगा कि भाई उससे स्टार्ट करें, हमने स्टार्ट किया और अपने अपनी कैपिटल डाली. और दूसरा कैश, तो एसेट अफेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? When we are adding assets is equal to liabilities plus capital. This is the equation जो हमने अभी पढ़ी है. तो एसेट्स में क्या होगा? प्लस 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू 0 प्लस 1 lakh. So 1 lakh rupees is equal to 1 lakh rupees. This is what we wanted, that your assets should be equal to your total equities, right? The next, borrowed rupees 10,000 from X. अब यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल्स अफेक्ट हो रहे हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज. हमने बोरो किया, ठीक है. इन दिस सिनेरियो व्हाट टू वेरिएबल्स आर अफेक्टेड? एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नाउ सी व्हाट आर द इफेक्ट. इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अगर बोरो कर रहे हैं तो एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज भी. एसेट कौन सा इंक्रीज हो रहा है बोरो करने से? भाई कैश. बोरो करने से कैश आया होगा. और हमको यहाँ पे क्या लिखना है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो इस सिनेरियो में क्या होगा? 10,000 रुपीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे बोरो करे मतलब एक्सटर्नल फाइनेंस ही करा होगा प्लस. सो दिस इज हाउ वी डू इट. नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000. अब यहाँ पे क्या कौन कौन से वेरिएबल्स अफेक्ट हो रहे हैं? ओनली एसेट. व्हाई? बिकॉज फर्नीचर अफेक्ट हो रहा होगा यहाँ पे कैश अफेक्ट हो रहा होगा. तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राइट साइड पे तो कुछ है ही नहीं. कंफ्यूजन. हाउ डू वी डू इट? लेट्स सी. So assets is equal to liabilities plus capital. क्या इसमें मेरी कोई liability बन रही है? ना, 0 लिख दो. कैपिटल बन रही है? ना, 0 लिख दो. बन क्या रहा है? assets. assets कौन सा बन रहा है? फर्नीचर आया होगा. तो मैं क्या कर दूं कि भाई 10,000 ऐड कर दूं और मेरा कैश गया होगा. तो मैं क्या कर दूं? -10,000. तो यहाँ क्या हो गया? 0. यहाँ कितना था? 0. So your assets is becoming equal to your total equities. So this is how. Now this is not a part of a question. तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कैसे हम ये कर रहे हैं, इक्वेशन में लिखते हैं. अभी के लिए just understand कि हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं. In the next video we will do one full-fledged comprehensive question where we will have around 10-12 entries, transactions, और उसको हम एक full-fledged answer में लिखेंगे accounting equation में. ठीक है. So these are the first 3 steps, right? The next transaction is purchase goods for cash ₹20,000. तो अब यहाँ पे step number 1, what are the variables affected? So यहाँ पे asset ही affect हो रहा है. Why? Because goods purchase करें तो एक तो goods affect हो रहे हैं और दूसरा cash affect हो रहा है. दोनों क्या हमारे? asset. तो अगर मैं equation में लिखने लगूं तो मैं क्या लिखूंगी? assets is equal to liabilities plus capital. इन दिस सिनेरियो एसेट्स कितने मेरे पास? प्लस 20,000 रुपए गुड्स परचेज करने के और माइनस 20,000 रुपए कैश पे करने का इज इक्वल टू 0 प्लस 0. ठीक है. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 30,000 रुपए का. गुड्स परचेज तो किया राम से पर उधारी पे, मतलब उसे पे नहीं किया है पर गुड्स आ गए हैं. तो कौन से वेरिएबल्स यहाँ अफेक्ट हो रहे हैं? एसेट अफेक्ट हो रहे हैं एक तो, और दूसरा हमारी लायबिलिटी फॉर्म हो रही है. कल को हमें राम को पैसे पे करने पड़ेंगे तो हमारा वो क्या है? वो हमारी लायबिलिटी है. तो कौन से 2 वेरिएबल्स अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? वन इज योर एसेट्स एंड द अदर इज योर लायबिलिटी. सो गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो एसेट में क्या हो जाएगा? प्लस 30,000. भाई ऑब्वियसली मेरे गुड्स आ रहे हैं तो मैं प्लस 30,000 एसेट में कर सकती हूँ. तो अब क्या मैं माइनस 30,000 कर दूं एसेट्स में? जैसे यहाँ पे कैश था, यहाँ पे कैश लिखा है क्या? नहीं. यहाँ पे लिखा है राम से, और वो भी किस पे? क्रेडिट पे. बोल रखा है कि क्रेडिट पे उधारी पे लिया है. तो क्या हो जाएगा? 30,000 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? लायबिलिटी. क्या राम मैं ही हूँ? आई एम नॉट राम. राम इज अ थर्ड पार्टी, राइट? सो अगर तीसरे बंदे से लिया है तो वो क्या है? वो एक्सटर्नल इक्विटी है.
तो अगर एक्सटर्नल इक्विटी है तो वो किस में लिखा जाएगा, लायबिलिटीज में 30,000 रुपीज प्लस क्या कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस्ड है, नो, सो 0, 30,000 इज इक्वल टू 30,000। सो इक्वेशन हमेशा जब भी कोई इक्वेशन आती है आपको हर एक स्टेप पे देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से इक्वल होने चाहिए, यस। देन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर कैश फॉर रुपीज 12,000। मैंने गुड्स बेचे 10,000 के और कितने में बेचे, 12,000 रुपए में बेचे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल अफेक्ट है, गुड्स बेचे मतलब एसेट्स अकाउंट अफेक्टेड है, क्यों, गुड्स से रिलेटेड है वो, ठीक है। और दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है, प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्टिंग 10,000 की थे, सेलिंग प्राइस 12,000 की है, सो व्हाट इज द प्रॉफिट इन बिटवीन, 2,000 रुपीज। सो यहाँ पे कौन सी क्या लायबिलिटीज किसी भी तरीके से अफेक्ट हो रही है यहाँ पे, नो। हैव वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, नो, साफ साफ लेके गुड्स सोल्ड करें, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता, इट इज ऑलवेज एन अजम्पशन कि गुड्स हमेशा कैश पे ही बेचे या खरीदे गए होंगे, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कितने एसेट्स आए हैं, गुड्स सोल्ड करा है तो गुड्स चले गए, कितने के गए हैं, 10,000 गुड्स गए। गुड्स कितने के गए हैं, माइंड यू यहाँ पे गुड्स गए कितने के हैं, 10,000 रुपए के गुड्स गए हैं, पर गुड्स एक्चुअली कैश कितने का आया है, गुड्स तो 10,000 गए हैं पर कैश कितने के, 10,000 क्या ही आया कैश, कैश आया है 12,000 रुपीज का, पर आएगा कहाँ पे, कैश एक भी तो एसेट है, सो माइनस 10,000 प्लस 12,000। यहाँ पे क्या लायबिलिटी थी क्या कोई, नो, 0 प्लस कैपिटल, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है या लॉस सब्ट्रैक्ट होता है, सो कैपिटल में यहाँ पे कितना प्रॉफिट ऐड होगा, 2,000 रुपीज, सो 2,000 रुपीज यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं माइनस 10,000 प्लस 12,000 तो कितना होगा, प्लस 2,000, यहाँ पे भी प्लस 2,000 और यहाँ पे भी प्लस, बोथ साइड्स आर इक्वल, सो वी आर इन इक्वेशन। सो ये समझो आप, हमेशा जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो कौन से अकाउंट को इफेक्ट करता है, कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करता है। और इस सिनेरियो में गुड्स जा रहे थे तो गुड्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा था, और उसको बेच के क्या और अकाउंट अफेक्ट हो रहा था, कैश अकाउंट। सो दोनों ही एसेट है तो दोनों अकाउंट किस तरफ हुआ, एसेट साइड हुआ। फिर उसके बाद क्या कुछ लायबिलिटी थी जो हमने खरीदी या बेची, नहीं, तो लायबिलिटी में 0। और उसके बाद प्रॉफिट कितना का हुआ मुझे उससे, 2,000 रुपए का, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज रिटन इन योर कैपिटल और लॉस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ओके।